नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भाजपा के दिग्गजों की चुनावी रैली और जनसभाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनावी अभियान जारी। अन्य दलों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। केरला में शशि थरूर के काफिले पर हमला। बीच सड़क पर घेरी गाड़ी। गनमैन और ड्राइवर घायल। हिरासत में आरोपी। मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग का अहम फैसला। पश्चिम बंगाल में 4000 से ज्यादा सहायक मतदान केंद्र बनाने को दी मंजूरी। 1200 से ज्यादा मतदाता वाले क्षेत्रों में बनेंगे नए केंद्र। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा। कुएं में गिरी कार। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पश्चिम एशिया में संघर्ष के 36वें दिन ईरान का इजराइल पर हमला। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान का एक और अमेरिकी फाइटर जेट जो है उसको मार गिराने का दावा। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं केरलम के अल्पुझा में, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। There are opportunistic leaders who want to come to power at any cost, will do anything to come to power. അവസരവാദത്തിന് മുഖ്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയും അധികാരത്തിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കളുണ്ട്. They don't care whether they are being helped by BJP, RSS, anybody. They don't care. അവർക്ക് യാതൊരു ചിന്തയില്ല. അവർ RSS സഹായിക്കട്ടെ, BJP സഹായിക്കട്ടെ, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ആകുലതയില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കളുണ്ട്. And then there are leaders who are not opportunistic, who believe in something. There are workers who've spent many years working for the ideology, who are feeling betrayed, let down, hurt, upset. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നേതാക്കളുണ്ട്, അവർ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവർ അവസരവാദപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. വർഷങ്ങൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ ഇന്ന് അവർ ചതിക്കപ്പെട്ട, വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട തോന്നലുള്ള പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലുണ്ട്. And who are very upset at what is happening to their party. അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതോർത്ത് വളരെ അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്നുണ്ട്. I fight the BJP, I fight the RSS. I've got 38 cases on me. ഞാൻ BJPയും RSSനെയും നിരന്തരം എതിർക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്കെതിരെ 36 മുതൽ 38 കേസുകൾ വരെയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. They took away my government house. They took away my membership of Lok Sabha. I'm out on bail. Interrogated me for 55 hours. But I don't back down. അവരെന്റെ ലോക്സഭയിലെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കി, എന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി അവർ നീക്കം ചെയ്തു. അവരെന്നെ 55 മണിക്കൂർ നിരന്തരമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും BJPക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോവുകയില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് ജാമ്യത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. Narendra Modi attacks me and the Congress party every single day. നരേന്ദ്രമോദി എന്നെയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെയും ഓരോ ദിവസവും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Why does Narendra Modi not attack your chief minister? എന്തുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാത്തത്? Why does तो क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केरलम के अल्पुझा से। और आइए अब शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी जो खबरें हैं। जनादेश में क्या है वो खबरें देख लेते हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर है। केरलम में विधानसभा चुनावों के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेता आज केरलम में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुवल्ला में एनडीए की जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद वो तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगे। इस दौरान वो राज्य में बीजेपी और एनडीए की जो ताकत है
उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री दोपहर में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सड़क मार्ग से तिरुवल्ला जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो वापस तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। ये रोड शो शहर के केंद्र में स्थित किल्लीपलम जंक्शन के करमना तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेमोम से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर, उम्मीदवार आर श्रीलेखा, वीवी मुरलीधरन और करमना जयन भी प्रधानमंत्री के रोड शो में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के जो एनडीए उम्मीदवार हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में आयोजित इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। और जेपी नड्डा इस वक्त तिरुवनंतपुरम में मौजूद हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। Gold has also been stolen. I assure you, on behalf of my party, that you bring us to the power and you give us the mandate. We will ensure that every person, every party which was involved will bring to the books and they will be jailed. That I would like to share with you. And the same way, I would like to talk about the cooperative scandal also. This cooperative scandal, they talk about the people, they talk about the poor people, they talk about the marginal section of the society. They have looted the money of the farmers in the cooperative scandal. And both of them, the Congress party, the UDF and the LDF, both of them have looted. And the time has come that we have to give them a befitting reply, and the only way to give reply is to elect my friend, the BJP candidate, Raj Shekharanji from this constituency, that we have to understand. As far as Prime Minister Modi is concerned, I'd also like to share that we have been always, Prime Minister Modi has been always very gracious to Kerala. He has been always taking care of Kerala as the Prime Minister of the country. I would like to share with you that the tax devolution for the Kerala in the past 11 years has been 4 times more, that we have to understand. And if I talk about the grants in aid to Kerala by an Honorable Prime Minister, in the last 11 years, it has been 6 times more than what you used to get in the UPA regime, that we have to understand. More than 1,548 kilometers of national highway has been constructed in Kerala. In spite of the fact that the state government did not give us land, they objected us. They always tried to obstruct the formation of the construction of the national 548 kilometers have been constructed in Kerala. If I talk about, तो आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को, जो एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और इसी तरह से जो तमाम दिग्गज नेता हैं, अलग अलग जो चुनावी पार्टियां हैं, वो चुनावी प्रचार प्रसार इन तमाम राज्यों में कर रहे हैं। और ऐसे ही बीजेपी के कई बड़े नेता आज केरलम में हैं और ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। भाजपा नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेरम्बूर में जो जीबी पथ्यक्कल है, उसके समर्थन में रोड शो करने वाली हैं। इसके बाद वो शाम को मनालूर विधानसभा क्षेत्र में मनापडी से पवारत्ती तक एडवोकेट के अनीश कुमार के समर्थन में रोड शो में शामिल होंगे। इसके अलावा किरेन रिजिजू भी केरल में चुनावी प्रचार में इस वक्त आपको सक्रिय नजर आएंगे। तो भाजपा का जो प्रचार अभियान है वो मिशन मोड में चल रहा है। और आज भी जो बड़े कई दिग्गज नेता हैं, किरेन रिजिजू, निर्मला सीतारमण, उनके अहम चुनावी कार्यक्रम हैं। केरल में सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर पर हमले की खबर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर पर कल शाम वंडूर में 5 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। शेष आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब थरूर कांग्रेस नेता एपी अनिल कुमार के चुनावी अभियान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।
प्राथमिकी के मुताबिक 2 वाहनों में सवार आरोपियों ने सांसद के वाहन को रोक दिया। जब सुरक्षाकर्मी ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो उस पर और चालक पर कथित तौर पर हमला किया गया। और अब बात असम की। असम में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज असम में लगातार दूसरे दिन चुनावी जनसभाएं करेंगे। दोपहर को असम के सिलचर में रैली है। सिलचर के श्रीभूमि स्थित रामकृष्ण नगर में पहली जनसभा है। उसके बाद वो कछार के लखीपुर में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो भाजपा अध्यक्ष का असम दौरा है, जहां असम में भी चुनावी बुगुल बच चुका है। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी पर हमला हुआ। आज सुबह प्रचार के दौरान बहरामपुर में यह घटना हुई। अधीर रंजन का आरोप है कि टीएमसी ने बाहर से किराए के गुंडों से हमला करवाया। गुंडों के पास हथियार भी थे। उन्होंने इसकी आशंका पहले ही प्रशासन से जाहिर की थी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि आशंका जाहिर करने के बाद भी कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाया गया। और वहीं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण कदम उठाए। आयोग ने राज्य में 4660 सहायक ऑक्सिलरी मतदान केंद्र बनाने की मंजूरी दी। ये अतिरिक्त मतदान केंद्र उन क्षेत्रों में बनाए गए जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से ज्यादा है, ताकि भीड़ कम हो, मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो पाए। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 321 मतदान केंद्रों के स्थान में भी बदलाव किया गया। इस पहल का उद्देश्य मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करता है। इन नई व्यवस्थाओं के बाद पश्चिम बंगाल में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 85,000 से ज्यादा हो गई। चुनाव आयोग का यह कदम अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के 36 नेताओं को दी जा रही भारी पुलिस सुरक्षा पर कड़ी आपत्ति जताई। आयोग ने इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता को 2 से 3 दिनों में निष्पक्ष समीक्षा करने का निर्देश दिया। सूत्रों की माने, चुनाव घोषणा से पहले 832 टीएमसी नेताओं, 144 अन्य लोगों की सुरक्षा में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, जो आयोग की अनुमति के बिना जारी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों वाले, जमानत या पेरोल पर बाहर नेताओं और नियमों के विरुद्ध सुरक्षा पाने वालों की सुरक्षा हटाई जाए। साथ ही लंबित गैर जमानती वारंटों को लागू करने के निर्देश दिए गए। अब तक बंगाल पुलिस की ओर से अनुपालन रिपोर्ट न मिलने पर आयोग नाराज है। और फिलहाल जनादेश में इतना ही, जहां हम चुनावी राज्यों से जुड़े तमाम अपडेट्स आगे भी आपके साथ करते रहेंगे साझा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में प्रसिद्ध संगीतकार रमेश विनायकम से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनके अभिनव गमक बॉक्स नोटेशन सिस्टम की सराहना की। इस मुलाकात का वीडियो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। प्रधानमंत्री ने विनायकम के कार्यों को भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। This is the gamak sarga, and the ragas come from the oscillations of the music. Sa re ga ma pa dha ni sa ni da pa. So this is an Hindustani sort of
But in the south, Sarigama Badanisa, that is Bilaval and this Shankaravarna. All these things comes out only because of the oscillations of the gamakas. That gamakas were never written and thought to be not writable at all. So I invented this in 2009. I'm going to ask you to be a 7-year-old for 10 minutes. I'm going to make you play Vande Mataram. Sa re ga sa re sa re ga pa dha. It's a simple application. Ga ga ma pa dha ni sa. Vande Mataram. Vande Mataram. There has never been a science and technology for music. It has only been traditional. So our music has to be connected to the most advanced technology, which is possible now through the system thing. This is the first time this technology I have patented that also. So this has to be implemented by writing all the music of India and then feeding it to the AI and machine learning and bring a complete knowledge repository for the whole country. So emotional. इस दौरा वक्त के लिए हमने 20 years खर्च किया सर. Whenever somebody learns Gamaka box from me, sir, I give him a pencil and a rubber and that black man is good. You have been a student, sir. Rama naam mein tudi Rama naam mein tudi Rama naam mein Shruti Rama naam mein tudi. Wow. अनुपम प्रस्तुति। बढ़ते आगे, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की उपलब्धियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कुल 6,677 LHP कोचेस का निर्माण किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर यात्रियों की सुरक्षा और आराम में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय रेलवे पूरे देश में कनेक्टिविटी को परिवर्तित कर रहा है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों को भी बेहतर संपर्क मिल रहा है। इसके अलावा 1,674 लोकोमोटिव का निर्माण किया गया, जो घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। ये उपलब्धियां भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए कदम को दर्शाती हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया परिसर का दौरा किया। 1992 बैच के IAS अधिकारी चंचल कुमार ने 1 अप्रैल को मंत्रालय सचिव का पदभार संभाला। उन्होंने संजय जाजू का स्थान लिया, जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है। IIT कानपुर से शिक्षा प्राप्त कुमार इससे पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में भी कार्यरत रह चुके हैं। FTII परिसर में उनका स्वागत संस्थान के निदेशक धीरज सिंह ने किया और इस दौरान नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक प्रकाश मखदूम सहित MIB के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। सचिव आज संस्थान में अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश ATS ने एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए पाकिस्तान से संचालित एक संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेरठ निवासी साकिब उर्फ डेविल और अरबाब तथा गौतम बुद्ध नगर जिले निवासी विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला पंडित उर्फ बाबू उर्फ संजय के रूप में हुई। गिरोह के सदस्य देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे सिग्नल बॉक्सेस और गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों को निशाने बनाने की योजना पर वो काम कर रहे थे। साथ ही राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी कर उनकी जानकारी पाकिस्तान तक भी पहुंचा रहे थे। इसके बदले आरोपियों को QR कोड के माध्यम से पैसे मिलते।
एटीएस के अनुसार आरोपियों ने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में कई स्थानों की रेकी की। कुछ जगहों पर छोटी आगजनी की घटनाएं भी की, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे गए। ये गिरोह लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। लेकिन इससे पहले ही एटीएस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। डिंडोरी के शिवाजी नगर इलाके में कल रात एक कार पानी से भरे हुए कुएं में गिरी, जिससे एक ही परिवार के 9 लोगों की मौके पर मौत हुई है। जानकारी के अनुसार सभी लोग एक कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक ड्राइवर का वाहन से नियंत्रण हटा और कार सीधे कुएं में जा गिरी। कुआं पानी से भरा होने की वजह से किसी को बचने का मौका नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सबकी जान जा चुकी थी। डिंडोरी पुलिस ने मामला दर्ज। अब आपको रूबरू करवाते हैं बेल्लारी की एक प्रेरणादायक कहानी से। यहाँ की सुमा रेड्डी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए का लोन लेकर अपने सपनों को उड़ान दी। सुमा ने घर से ही खाने का व्यवसाय शुरू किया, जहां वो अलग अलग तरह के पापड़ बनाती हैं। अपनी इसी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने न सिर्फ अपना कारोबार खड़ा किया, बल्कि लोन की सभी किश्तों को भी सफलतापूर्वक चुकाया। आने वाले दिनों में वो मुद्रा योजना के तहत और ज्यादा लोन लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने पर योजना बना रही हैं। देखिए रिपोर्ट। ನಾನು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹಪ್ಪಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಡ್ಡಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಪ್ಪಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 5 ಜನಗೆ ನಾವು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಲಸನೂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಬುದಿದೆ. ಈಗ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಕೂತು। और वहीं बेल्लारी की ममता ने भी बेरोजगारी के अवसर की अगर बात की जाए तो उसको बदलकर अपनी सफलता की नई कहानी लिखी। एमबी ग्रेजुएट ममता ने बताया कि पहले वो नौकरी की तलाश में थी और आधुनिक कढ़ाई वाली सिलाई मशीन खरीदने के लिए परिवार से पैसे उधार लेने में हिचकिचा रही थी। तभी उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सहारा लिया और 2 लाख रुपए का लोन लेकर बैग, ब्लाउज और कढ़ाई का अपने व्यवसाय के जरिए दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲೇ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಲೋನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಲೋನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಲೋನಿಗೆ ಹೋದೆ. ಲೋನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು 2 lakhs. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಿಂದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಲೌಸಸ್ಗೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ಸಿಗೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್। और अब बात पश्चिम एशिया की, जिसके संकट में ग्लोबल पेयर बनने का पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस्लामाबाद को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थता को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वो इस्लामाबाद की सरजमी पर किसी भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करेगा। इसके बाद मध्यस्थता के पाकिस्तान के दावों की हवा निकल गई। और अब बात केदारनाथ धाम की, जहां लगातार भारी बर्फबारी ने पूरे केदारनाथ शहर को बर्फ की मोटी परत से ढक दिया। मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं, लेकिन इस भारी बर्फबारी का सीधा असर आने वाले तीर्थ यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है। लगातार खराब मौसम की वजह से चल रहे कंस्ट्रक्शन, सफाई और दूसरी तैयारी की वजह से काम काफी धीमे हो गए हैं।
और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।